Good morning, students. Hello, how are you all? I hope you all are fine at your homes and you all must be safe. So, here I am, your teacher Muskan Sharma from Vidya Balbhavan School. I will be teaching you maths. Okay, so this is your maths class. Take out your books and your notebooks. Okay, now for the introduction, we are starting chapter number 6 percentage. Okay, this must be a new chapter for you children. Okay, you must not have read this chapter before in your any classes, so we are starting this chapter now. Okay, this is a very important and a very common topic. Okay, percentage, you use percentage a lot of places at a lot of places, right? आप percentage को बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग जगह आप यूज़ करते हैं उसको, right? So we are dealing with the percentage now. Very interesting chapter. Just a bit of concentration and interest you need to give in this chapter and you will get to understand this chapter very clearly. Okay, आपको थोड़ा सा सुनना पड़ेगा. You have to listen and concentrate in this chapter. Okay, moving on to our introduction. So, as an introduction of the chapter 6 percentage, Sita looked through the books at the store. She selected a book which was for 100 rupees. The salesman said she would get a 10% discount on it. He asked her to pay 90 rupees only. She came home and asked her father to explain what a percent is. ओके, सो सीता एक बुक स्टोर पे गई है. उसने एक बुक सेलेक्ट करी है जो 100 रुपीज़ की थी, बट सेल्समैन ने उसको कहा कि उसको वो बुक 10% डिस्काउंट पर मिल जाएगी और उसको सिर्फ 90 रुपीज़ ही पे करने हैं. वहाँ पर उसको समझ नहीं आया, सिर्फ उसने 90 रुपीज़ ही पे कर दिए. पर अपने घर पर आकर अपने फादर से पूछा कि परसेंट क्या होता है. ओके, सो I will explain you now what is percent, what is percentage. Okay, let's start. First of all, for you students, I need to tell you that percentage sign is this. This is the correct sign of the percentage. Okay, so if you will get this sign anywhere, that means आपको वहाँ पर कुछ percentage से related करना है. ठीक है, और दैट थिंग इज रिलेटेड टू परसेंटेज. ओके, मूविंग ऑन. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेयर वी आर यूजिंग दिस परसेंटेज साइन और वेयर वी आर यूजिंग दिस परसेंटेज. हमें कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है इस परसेंटेज की. फर्स्ट इज, सो वेयर आर दोज प्लेसेस वेयर वी हैव टू use this percentage. For first is when we have to avail a discount. जैसे कि अभी सीता ने किया, उसको डिस्काउंट मिला कुछ 10% का. ठीक है, when you calculate your marks, तब भी आप अपनी परसेंटेज निकालते हो कि आपकी इतनी परसेंटेज आई है इस बारी. और कैलकुलेटिंग एनी क्वांटिटी, कभी किसी क्वांटिटी को आपको कैलकुलेट करना हो. फॉर एग्जांपल आपके सामने कुछ रखा है एंड आप बता रहे हैं कि 10% इस चीज़ का ऐसा है, या इस तरह से कोई भी एग्जांपल जब भी हम कैलकुलेट करते हैं अपनी क्वांटिटी को. ठीक है, और भी बहुत सारी प्लेसेस होती हैं जहाँ पर हम अपने परसेंटेज को यूज़ करते हैं. ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन इट केयरफुली. ओके, moving on. Now first of all student, percent means 1 part out of 100. Okay, what do you mean by percent? 1 part out of 100. जैसे फ्रैक्शंस में हमने पढ़ा था कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या है आपका 1, राइट? सबसे बड़ा फ्रैक्शंस में नंबर क्या है 1. ऐसे ही परसेंटेज में सबसे बड़ा नंबर है 100. ओके, 100 के बियॉन्ड कुछ भी नहीं होता है, 100 से ही आपके परसेंट निकलेंगे, राइट? अगर आप कोई भी पर्सन बताते हो, अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हो कि हाँ ये 100% करेक्ट है, इट मीन्स फुल्ली करेक्ट है. ठीक है, अगर आप 100% स्कोर करते हो, इट मीन्स आपने फुल स्कोर किया है. ओके, सो दिस इज़ व्हाट परसेंट मीन्स, जिसमें आपको 100 में से कुछ पार्ट्स आपको मिलते हैं या आपको 100 में से कुछ पार्ट को निकालना होता है. ओके, सो परसेंट मीन्स 1 part out of 100. So 100 is the biggest number here in the
chapter percentage. Moving on. So the next line is percent is also a form of fraction. That is what I just told you now कि percent भी एक फॉर्म ही होता है फ्रैक्शन का. ठीक है, आपको परसेंट में भी यही समझ में आएगा कि एक ये फ्रैक्शन है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फ्रैक्शन होते थे 4/100 और 63/100 और एनीथिंग, तो इसका मतलब यही होगा यहाँ पर कि वो 63% है. For example, if ever you see 48/100, then that also means 48%. ठीक है, 48/100 का मतलब 48% होता है. अगर किसी भी डिनोमिनेटर में 100 लगा है तो दैट मीन्स वी कैन से कि वो परसेंटेज में भी हम उसको लिख सकते हैं. ओके, नाउ मूविंग ऑन, द नेक्स्ट इज द सिंबल ऑफ परसेंट. सो दिस इज द सिंबल ऑफ परसेंट. आई जस्ट एक्सप्लेन्ड यू, मैंने अभी आपको बताया ही था कि परसेंट का सिंबल क्या होता है. सो दिस इज द सिंबल ऑफ द परसेंट. ओके, नाउ अ परसेंटेज इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100. सो व्हाट इज द परसेंटेज? इट इज़ जस्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ए नंबर कि वो एक फ्रैक्शन है 100 का. एज जस्ट आई एक्सप्लेन यू द एग्जाम्पल 48/100 जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया था. सेम एज लाइक दैट 48/100 मीन्स 48% बिकॉज 100 वॉज एट द डिनोमिनेटर. राइट, डिनोमिनेटर में आपके 100 लिखा है एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100. सो एवर इफ देर इज अ फ्रैक्शन ऑफ 100 you have to write it in percentage in this chapter. Okay, so in this example, in this box you can see 10 out of 100. Just see the shaded portion. Okay, this shaded portion is 10 boxes हैं. So 10 out of 100 is 10/100. Okay, जब भी आपके पास 10 out of 100 होगा और 10/100 होगा, that means 10%. We can write 10% or 10% with this symbol. Similarly, if there is 20/100, it is 20%. 35/100 is 35%, like this. Some more examples. 38/100 is equals to 3800. 64/100 is equals to 6400. Also ये आपके मन में बहुत ज़्यादा confusion होगी कि 100 की जगह कुछ और हो तो हम क्या करेंगे. इफ़ 100 है, अगर आपके पास 100 है डिनोमिनेटर में, सिर्फ तभी परसेंट है वो, नहीं तो वो परसेंट नहीं बोलेंगे हम उसको. ठीक है, 38/100, 64/100, अगर आपके पास 100 है डिनोमिनेटर में तभी आप इसको 64% या 38% तभी आप परसेंटेज का साइन लगा सकते हैं. अदरवाइज यू विल नॉट पुट दिस परसेंटेज साइन एनीवेयर. ओके, अदरवाइज आप इस परसेंटेज का साइन को नहीं पुट करेंगे. ओनली हमें 100 जब होगा डिनोमिनेटर में हम तभी इसको पुट कर सकते हैं. ओके, नाउ टू फाइंड परसेंटेज वी कैन बिल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद द डिनोमिनेटर 100. और हमें अगर परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से भी परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें हम डिनोमिनेटर को अपने 100 रखेंगे. ओके, वी हैव टू पुट आर डिनोमिनेटर एज 100 ऑल द टाइम, तभी हमारा वो नंबर परसेंटेज में लिखा जाएगा. अदरवाइज इट वुड नॉट बी काउंटेड एज अ परसेंटेज. ओके, नाउ आई होप you have understood this concept of percentage. Okay, and if there is any confusion you can ask me in the class, in the Zoom class which we always take. Okay, also now in here you can see Sita looked through the books at the store. Okay, आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी देख सकते हो. ये जो 10% का डिस्काउंट है, अब आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि इस 10% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ. 10% का डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल इट वुड बी 10/100. राइट, नाउ यू कैन मोर रिलेट टू दिस. राइट, thank you so much children. I hope you all have understood the concept of percentage and you all have understood everything and enjoyed this video. Homework is revise and write let us recall given in your book. ठीक है, जो आपके बुक में एक टॉपिक है let us recall, उसके पॉइंट्स आपको लिखने हैं. ये हेडिंग let us recall की हेडिंग जो है ये आप नहीं लिखेंगे. ठीक है, आपको ये हेडिंग नहीं लिखनी है. आपकी बुक में 105 पेज पर let us recall दिया है.
हेयर इट इज़, ये आपके पास पॉइंट्स दिए हैं, आपको ये वाली हेडिंग नहीं लिखनी है, ठीक है। इसकी जगह आप लिखोगे इंट्रोडक्शन, आप ये हेडिंग नहीं लिखेंगे, आप इसकी जगह इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, so thank you so much, stay safe, stay at your homes. This is the end of the video.